وزیر اعظم اور آرمی چیف سے افغانستان کے سیاسی رہنماؤں کے وفد کی ملاقاتیں، افغانستان میں بدلتی صورتحال پر تبادلہ خیال۔ وزیر اعظم عمران خان نے کہا، پاکستان سے زیادہ افغانستان میں امن کا خواہشمند کوئی ملک نہیں۔ افغان رہنماؤں پر بھاری ذمہ داری عائد ہوتی ہے۔ افغانستان میں امن و ترقی کے لیے مل کر کام کریں۔ محفوظ افغانستان کے لیے سیاسی تصفیہ ضروری ہے۔ ISPR نے بتایا، آرمی چیف جنرل قمر جاوید باجوہ نے افغان وفد سے ملاقات میں کہا، افغانستان میں دیرپا امن کے لیے ہر ممکن اقدامات کے لیے تیار ہیں۔ پاکستان افغانستان کے عوام کے ساتھ کھڑا ہے۔ افغان وفد نے پاک فوج کی قربانیوں اور کامیابیوں کو سراہا، کہا، پاک فوج کی افغانستان میں امن کے لیے کوششیں قابل قدر ہیں۔ پاکستان ایک بہت ہی ذمہ دار ملک ہے۔ جو بھی فیصلے ہوں گے وہ ہمارے یونیلیٹرل نہیں ہوں گے۔ We want this decision of recognition of Taliban in Afghanistan, it has to be a regional decision. It has to be in consultation with the regional powers and with international powers. پاکستان طالبان کو تسلیم کرنے کا فیصلہ تنہا نہیں کرے گا، وزیر اعظم کی زیر صدارت وفاقی کابینہ کے اجلاس میں فیصلہ۔ وزیر اطلاعات فواد چودھری نے میڈیا بریفنگ میں کہا، طالبان کو تسلیم کرنے کا فیصلہ دوست ممالک عالمی اور علاقائی طاقتوں سے مل کر کریں گے۔ چین نے بھی ابھی طالبان کو تسلیم کرنے کا فیصلہ نہیں کیا۔ افغان صورتحال پر وزیر اعظم کی امریکی وزیر خارجہ اور ترک صدر سے بات ہوئی۔ افغانستان میں موجود گروہوں اور دوستوں سے بھی رابطے میں ہیں۔ قابل اطمینان بات ہے کہ افغانستان میں آنے والی تبدیلی سے خون نہیں بہا۔ امید ہے طالبان بین الاقوامی قوانین کی پاسداری کریں گے۔ وزیر اعظم عمران خان کا برطانوی ہم منصب بورس جانسن سے پاکستان کو ریڈ لسٹ سے نکالنے کا مطالبہ۔ وزیر اعظم عمران خان کو بورس جانسن کا ٹیلی فون، افغانستان کی تازہ صورتحال پر بھی تبادلہ خیال۔ وزیر اعظم کا پاکستان کے لیے پرامن اور مستحکم افغانستان کی اہمیت پر زور۔ برطانوی وزیر اعظم نے افغانستان سے سفارتی عملے کے انخلا میں مدد کو سراہا۔ ترک صدر رجب طیب اردوان سے ٹیلی فون پر رابطے میں خطے کی مجموعی صورتحال خصوصاً افغانستان پر گفتگو ہوئی۔ وزیر اعظم کو ڈنمارک کے وزیر اعظم کا بھی ٹیلی فون، دونوں رہنماؤں کے درمیان کابل میں ہونے والی پیش رفت کا جائزہ لیا گیا۔ وزیر اعظم عمران خان کو جرمن چانسلر کا بھی ٹیلی فون، پاکستان کے تعاون کا شکریہ ادا کیا۔ وزیر اعظم نے کہا، پاکستان افغانستان سے غیر ملکی عملے کے انخلا میں سہولت دے رہا ہے۔ افغانستان میں ایک انکلوسیو سیٹ اپ آیا جائے، افغانستان کا نمائندگی ہو۔ ہم بڑا نزدیک سے اس سچویشن کو دیکھ رہے ہیں، پارلیمان کو آن بورڈ لیا جائے تاکہ پراپر پالیسی بن سکے۔ بلاول بھٹو زرداری کا افغانستان کی صورتحال پر پارلیمنٹ کو اعتماد میں لینے کا مطالبہ، کہتے ہیں ریاست کو اپنی پالیسی واضح کرنی چاہیے۔ وزیر اعظم نے ہر ایشو پر یو ٹرن لیا جس سے کنفیوژن ہوتی ہے۔ خان صاحب سنجیدہ نہیں، نیشنل ایکشن پلان کو چھوڑ دیا۔ نیشنل ایکشن پلان پر فوری اور مکمل عمل درآمد کیا جائے تاکہ خطے میں تبدیلی کے بعد ملک میں کوئی حادثہ رونما نہ ہو۔ سی پیک سمیت دیگر منصوبوں کی سیکیورٹی کا بھی جائزہ لیا جائے۔ وزیر اعظم نے تمام صوبوں کا حق مارا، پنجاب والوں کا جینا حرام کر دیا۔ کابل ایئرپورٹ پر ایک بار پھر فائرنگ، بھگدڑ سے خاتون زخمی، افراتفری پر فلائٹ آپریشن دوبارہ بند کر دیا گیا۔ ایئرپورٹ کے اطراف طالبان تعینات۔ طالبان کے عام معافی کے اعلان کے بعد کابل میں معمولات زندگی بحال، بازار اور اسکولز کھل گئے۔ طالبان کا سرکاری ملازمین کے لیے بھی عام معافی کا اعلان۔ ترجمان طالبان سہیل شاہین کہتے ہیں، سرحد سے لے کر انتظامیہ تک معاملات کنٹرول میں ہیں، چاہتے ہیں ایسی حکومت آئے جس میں سیاستدان بھی شامل ہوں۔ افراتفری اور جھوٹی خبریں پھیلانے کی ذمہ دار NDS ہے۔ افغانستان پر طالبان کا کنٹرول، عالمی برادری بھی حیران۔ یورپی یونین کا کہنا ہے طالبان سے بات کرنا پڑے گی کیونکہ وہ جنگ جیت چکے ہیں۔ یہ نہیں کہہ رہے کہ طالبان کو تسلیم کر لیا، مگر بات کرنا ہوگی۔ بھارت، ناروے، ڈنمارک اور چیک ریپبلک نے بھی اپنے سفارت خانے بند کر دیے۔ کئی ممالک نے عملہ مختصر کر دیا۔ روس کے مطابق طالبان نے کابل کو اشرف غنی دور سے زیادہ محفوظ بنا دیا۔ ایران کا بھی کابل اور ہرات میں سفارت خانے کھلے رکھنے کا اعلان۔ جرمنی نے صورتحال کو خوفناک قرار دے دیا۔ افغانستان کی امداد بند کرنے کا اعلان۔
कैनेडियन वज़ीर आज़म जस्टिन ट्रूडो ने कहा, तालिबान की हुकूमत को तस्लीम करने का कोई इरादा नहीं। बांग्लादेश ने अफगान महाजरीन को पनाह देने की अमरीकी दरख्वास्त मुस्तरद कर दी। अफगानिस्तान आलमी ताकतों का कब्रिस्तान, अमरीका भी गया मान। सदर जो बाइडन ने वजीर आज़म इमरान खान का विजन भी मान लिया। गलतियों का एतराफ़ करते हुए कहा, अफगानिस्तान के मसाइल का कोई फौजी हल नहीं था। चंद साल बाद भी इनकला करते तो नताइज मुख्तलिफ ना होते। अफगान फौज पर अरबों डॉलर खर्च किए, हर तरह के हथियार फराहम किए, लड़ने का जज्बा तो नहीं दे सकते थे। अफगान रहनुमा हौसला छोड़ गए और मुल्क से भाग निकले। अफगान फौज खुद लड़ने के लिए तैयार नहीं तो अमरीकी फौजी जाने क्यों गंवाएं। अशरफ गनी को मुज़ाकरात का कहा तो उन्होंने कहा अफगान फौज लड़ेगी, वो गलत थे। अफगानिस्तान में दहशतगर्दी से लड़ने आए थे, तामीर और तरक्की के लिए नहीं। पेंटागन में अफगानिस्तान की सूरत हाल पर प्रेस ब्रीफिंग। अमरीकी मेजर जनरल विलियम टेलर का कहना है, अमरीकी अफवाज और तालिबान के दरमियान कोई दुश्मनी नहीं। काबुल में इस वक्त 4000 फौजी मौजूद हैं। हामिद करजई एयरपोर्ट पर फ्लाइट ऑपरेशन जारी है। अफगान रहनुमा पायदार अमन के लिए किरदार अदा करें। अफगानिस्तान में अमन होगा तो पाकिस्तान में भी अमन होगा। वज़ीर ख़ारजा शाह महमूद कुरैशी ने कहा कि पाकिस्तान खित्ते में पायदार अमन, इस्तेहकाम और तरक्की चाहता है। पाकिस्तान मकसद के लिए शुरू से मसालेहाना किरदार अदा कर रहा है। कुछ क़ुव्वतें खित्ते के अमन को पारा पारा करना चाहती हैं। आलमी हालात के पेश नज़र इत्तेहाद बैनुल मुस्लिमीन की शदीद ज़रूरत है। We are not surprised by India's anti-Pakistan partisanship. This confirms Pakistan's long-held contention that India does not deserve to be on the Security Council, much less to aspire to become a permanent member of the Council. भारत सलामती काउंसिल की रुकनीत का अहल नहीं। अफगान सूरत हाल पर भी सलामती काउंसिल के इजलास में पाकिस्तान को खिताब का मौका नहीं दिया गया। पाकिस्तानी मंदूब मुनीर अकरम कहते हैं, भारत की जानिबदाराना कार्रवाइयाँ पाकिस्तान के लिए नफरत का इजहार हैं। चीनी नायब मंदूब ने पाकिस्तान को इजलास में शिरकत से रोकने को अफसोसनाक करार दिया। सेनेट इंतखाबात ओपन बैलेट से कराने से मुतालिक सदारती रेफरेंस सुप्रीम कोर्ट ने केस का तफसीली फैसला जारी कर दिया। फैसले में कहा गया, सेनेट इंतखाबात कानून की बजाय आइन के तहत होंगे, ओपन बैलेट से नहीं कराए जा सकते। इलेक्शन कमीशन शफाफ इलेक्शन के लिए तमाम इक़दामात कर सकता है। इंतखाबी अमल से करप्शन ख़त्म करना इलेक्शन कमीशन की जिम्मेदारी है। इसके लिए टेक्नोलॉजी का भी इस्तेमाल कर सकता है। वोटिंग में किस हद तक सीक्रेसी होनी चाहिए, तायुन इलेक्शन कमीशन का काम है। जस्टिस याहिया आफरीदी ने नोट लिखा, सेनेट इलेक्शन से मुतालिक सदारती रेफरेंस में कानूनी मसला नहीं, इस पर सदारती रेफरेंस में सुप्रीम कोर्ट से राय नहीं ली जा सकती। सदर का भेजा गया रेफरेंस राय दिए बगैर वापस भेजा जाता है। 1 मार्च को सुप्रीम कोर्ट ने केस का मुख्तसर फैसला सुनाया था। सुप्रीम कोर्ट ने राय 1-4 की निस्बत से दी। जस्टिस याहिया आफरीदी ने अलग से नोट तहरीर किया। लाहौर के ग्रेटर इकबाल पार्क में खातून से बदतमीजी, मुतासरा खातून की मुद्दईयत में मुकदमा दर्ज, 400 नामालूम अफराद नामजद। टिकटॉकर खातून से बदतमीजी का वाक़या 14 अगस्त को पेश आया था। खातून का मोबाइल और 15,000 रुपए छीनने का भी इल्ज़ाम। कश्मीर प्रीमियर लीग सीजन 1 का टाइटल रावलाकोट हॉक्स के नाम। प्रोफेसर के टाइगर्स फाइनल में नाकाम। बूम बूम की रावलाकोट ने सनसनीखेज मुकाबले के बाद 7 रन से मैदान मार लिया। KPL की चमचमाती ट्रॉफी अपने नाम कर ली। मुजफ्फराबाद की टीम 170 रन के ताकुब में 9 विकेटों पर 162 रन बना सकी। जीशान अशरफ 46 और हफीज 29 रन जोड़ सके। हतमी मार्के में रावलाकोट ने पहले खेलकर 7 विकेटों पर 169 रन बनाए थे। के साथ अटेंडेंस के साथ रोजाना की बुनियाद पे 6 दिन स्कूल खुले रहेंगे हफ्ते के। वो स्कूल्स खोले जाएंगे जो मंडे तक अपनी 100% टीचिंग स्टाफ, असातिज़ा और नॉन टीचिंग स्टाफ की वैक्सीनेशन की रिपोर्ट सबमिट करेंगे।
सिंध हुकूमत का 23 अगस्त से तालीमी इदारे खोलने का ऐलान। स्कूल्स में SOPs पर अमल दरामद यकीनी बनाना होगा। वजीर तालीम सिंध सैयद सरदार शाह कहते हैं स्कूल 50% हाजिरी के साथ खोलने की इजाज़त होगी। सिर्फ वो स्कूल खुलेंगे जहां असातिज़ा की 100% वैक्सीनेशन हो चुकी है। स्कूल्स में रैंडम PCR टेस्ट भी किए जाएंगे। यकसा तालीमी निज़ाम पर भी तनकीद। बोले उस्मान बुज़दार और जाम कमाल पर हैरत है, उन्होंने अपने हुकूक कैसे किसी और को दे दिए। हम अपने बच्चों को सिंधी पढ़ाना चाहते हैं तो क्यों ना पढ़ाएं। नून लीग ने मीडिया डेवलपमेंट अथॉरिटी का क़याम दहशतगर्दी करार दे दिया। मरियम औरंगज़ेब कहती हैं मीडिया डेवलपमेंट अथॉरिटी फाशिस्ट टोले के दिमाग की इख्तिरा है जो मीडिया और आज़ादी राय पर दहशतगर्दी है। मीडिया तंजीमों का एलामिया सरकारी झूठ पकड़े जाने का दस्तावेजी सबूत है। हुकूमत बताए गलत बयानी क्यों की गई, ये काम किसने किया और किसके हुक्म पर हुआ। मुआविन ख़ुसूसी शहबाज गिल कहते हैं ना अहल लीग के दरबारी मीडिया के जाली चैंपियन बनकर सियासत कर रहे हैं, ना अहल लीग का प्रोपेगेंडा कामयाब नहीं होने देंगे। तहरीक इंसाफ ने हमेशा मीडिया और आज़ादी इजहार राय की तायीद की। मीडिया डेवलपमेंट अथॉरिटी बिल पार्लियामेंट में पेश किया जाएगा। बिल ताकतवर के खिलाफ और वर्कर के हक में है। तहरीक इंसाफ के बैरिस्टर सुल्तान महमूद चौधरी 34 वोट लेकर आज़ाद कश्मीर के सदर मुंतखब। कहते हैं कश्मीर कॉज पर समझौता नहीं करूंगा। आज़ाद कश्मीर की आईनी हैसियत तब्दील करने की कोई तजवीज़ नहीं। ग्रुप बंदी का प्रोपेगेंडा करने वाले नाकाम हो गए। सदर का ओहदा सिर्फ प्रोटोकॉल के लिए नहीं, मसाइल के हल के लिए भी है। बैनुल अक़वामी सतह पर कश्मीर के लिए काम करूंगा। इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन के डेमो पर इलेक्शन कमीशन का एलामिया। इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने हुकूमत की तैयार करदा इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन पर टेक्निकल एवेल्यूएशन कमेटी तश्कील दे दी। कमेटी EVM का जायजा लेकर इलेक्शन कमीशन को रिपोर्ट देगी। टेक्निकल कंसल्टेंट की खिदमात हासिल करने की भी मंजूरी। विफाकी वजीर शिबली फराज कहते हैं कोशिश है ह्यूमन इंटरफेयर कम और टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल ज़्यादा किया जाए। अपोजिशन की मैं ना मानूं का कोई इलाज नहीं। NCOC का 9 मुहर्रम उल हराम को तमाम बड़े और मरकजी वैक्सीनेशन सेंटर्स खुले रखने का फैसला। 10 मुहर्रम पर वैक्सीनेशन सेंटर्स बंद रहेंगे। NCOC का आशूरा के दौरान पहले से जारी हिदायत पर अमल दरामद पर जोर। मुल्क भर में कोरोना के मजीद 95 मरीज इंतकाल कर गए। 3221 नए केस रिपोर्ट। मुहर्रम में अमन व अमान की सूरत हाल का जायजा लेने के लिए वजारत दाखिला में ख़ुसूसी सेल कायम। शेख रशीद कहते हैं मुहर्रम में सिक्योरिटी हाई अलर्ट रखी जाए, अमन व अमान को हर सूरत यकीनी बनाया जाए। वफाकी हुकूमत सूबों को अमन के लिए तकनीकी और दीगर सपोर्ट यकीनी बनाए। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह कहते हैं मुहर्रम और अफगानिस्तान की सूरत हाल के बाइस थ्रेट्स हैं, खतरात से निमटने के लिए सख्त इंतजाम किए हैं। 9वीं और 10वीं मुहर्रम को जुलूस के रास्तों पर मोबाइल सर्विस बंद रहेगी। DIG ऑपरेशंस लाहौर का कहना है जुलूस के रास्तों पर मोटरसाइकिल की डबल सवारी पर भी पाबंदी होगी। लाहौर के शाही किले के बाहर नास्ब राजा रंजीत सिंह का मुजस्समा गिरा दिया गया। DG वॉल सिटी अथॉरिटी के मुताबिक मुजस्समा सुबह सवेरे गिराया गया। पुलिस ने एक शख्स को गिरफ्तार करते हुए मुकदमा दर्ज कर लिया। मुजस्समे के मकाम को शील्ड्स लगाकर सील कर दिया गया। मौत से नहीं डरते, सफ़र तो ज़रूर करना है। कराची से रोहड़ी जाने वाली हज़ारा एक्सप्रेस पर छत पर सैकड़ों मुसाफिर सवार। रेलवे पुलिस और इंतज़ामिया के रोकने के बावजूद मुसाफिर नहीं माने। ज़राए के मुताबिक मुसाफिर कराची के लांडी स्टेशन और हैदराबाद से सवार हुए। गुज़श्ता साल भी ट्रेन की छत पर बैठे चंद मुसाफिर हादसे में अपनी जान से हाथ धो बैठे थे। T20 वर्ल्ड कप में पाकिस्तान अपना पहला मैच भारत से खेलेगा। टाकरा 24 अक्टूबर को होगा। ICC ने शेड्यूल का ऐलान कर दिया। आगाज 17 अक्टूबर से होगा। ओमान और UAE मुश्तरका तौर पर मेज़बानी करेंगे।
पाकिस्तान दूसरे मैच में 26 अक्टूबर को न्यूजीलैंड और 31 अक्टूबर को अफगानिस्तान के मद्दे मुकाबिल होगा। T20 वर्ल्ड कप के सेमीफाइनल 10 और 11 नवंबर को खेले जाएंगे। फाइनल 14 नवंबर को होगा। और मुत्तहिदा अरब अमारात में 10 ग्राम सोने की कीमत 2108 दरहम हो गई। 1 ग्राम सोना 210 दरहम और 1 मिलीग्राम सोना 21 फिल्स का हो गया।